आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, I believe many students are not present today because of the O levels examination of October number session. So that is why I can see that the strength is quite low. Even though we have a students of 50, strength of 50 in our class, I can only see 25 students right now online. Is there any other reason why the students are not there? Okay. So we are going to discuss about our previous class. Previous class we have discussed about non-uniform acceleration. And in non-uniform acceleration, we have discussed that let's say when a person is diving from a certain height in air, after its velocity is increased due to gravity, the gravitational force start acting on the air resistance, start acting on the object, and which decreases the overall resultant force of the object, which means this decreases the acceleration of the object, and ultimately the object reaches to a constant velocity where the weight and the air resistance are equal, and that constant velocity is known as terminal velocity. इस velocity को हम normally terminal velocity कहते हैं. Now we are going to discuss some past paper question related to this topic. इस topic से related ही हम कुछ past papers के questions करेंगे. So let us start the questions, and let's say this is the question we are going to discuss. Let me share what is the references to this question. That is October number 2009, paper 2-1. 2009 का पेपर 2-1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, and we are going to discuss that question. Okay. So let us start with this question. Now, the question is: a skydiver jumps from a high altitude balloon. Explain briefly why the acceleration of the diver decreases with time. When an object dives in air, and when an object is dropped in the air, we know that ये जैसे जैसे वो नीचे की तरफ गिरता है, वेट उसको नीचे की तरफ पुल करता है, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है, ओके, तो उसके ऊपर डाउनवर्ड उसका वेट काम करता है और अपवर्ड उसके ऊपर क्या इंक्रीज होती जाती है? एयर रेजिस्टेंस. ठीक है. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, एयर रेजिस्टेंस भी आहिस्ता 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 इंक्रीज होती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वेट और एयर रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है. So what could be the answer that explain briefly why the acceleration of the diver decreases with time? जी. Due to the opposing force of air resistance. Air resistance increase होती जाएगी. Air resistance increase होती जाएगी, but this is of 2 marks. Why the air resistance is increasing? Sir, as the velocity Speed of the object is increasing. So air resistance increases due to increase velocity in velocity, which decreases resultant force and acceleration. ठीक है जी. तो इसकी वजह से आपकी रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती है, और रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ऑब्वियसली आपकी क्या डिक्रीज होगी? एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी. इज दैट ओके? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ द ड्राइवर इज 9.8 एट द स्टार्ट. बिगिनिंग में बिल्कुल 9.81 क्यों थी? ग्रेविटी तो काम कर रही थी स्टार्टिंग में. ग्रेविटी काम कर रही थी. एयर रेजिस्टेंस उस वक्त तक कितनी थी? नेग्लिजिबल थी, बिकॉज वेलोसिटी क्या थी? 0 थी उस वक्त, है ना. इनिशियल वेलोसिटी
was 0, hence air resistance was 0, क्योंकि स्टार्टिंग में एयर रेजिस्टेंस क्या थी आपकी 0. ओके, so these are the basically two part of the initial part of the question, and now they are discussing a graph. एक उन्होंने velocity time graph हमें दिया है, which is actually a non uniform acceleration. स्काई डाइविंग का हमने ग्राफ हमने बनाया भी था, and let us discuss that graph. The variation with time t, the vertical speed v of the skydiver is shown in figure 2.1. Obviously the skydiver is falling downwards, it is vertically moving, that's why it is using the word vertical speed. Okay, तो आप देख सकते हैं स्पीड इंक्रीज होती जाती है लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास एक्सेलरेशन 0 हो जाती है तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. इज दैट राइट? जी. So use figure 2.1, determine the magnitude of acceleration of the skydiver at t is equals to 6 seconds. तो t is equals to 6 seconds के ऊपर हमें डाइवर की एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करना है. ओके जी, सो लेट्स सी द ग्राफ. व्हाट इज द टेंजेंट तो इधर टेंजेंट बनाकर ही करेंगे ना. जी जी, दिस इज टेंजेंट. This is the point. And this is the tangent to that point. सर स्पीड टाइम ग्राफ में भी ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बता दो. जी जी बिल्कुल. तो ये थोड़ा आपका और टेंजेंट, क्लोज होना चाहिए. हाँ थोड़ा सा और क्लोज होगा, यहाँ पे बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है असल में. ये होगा टेंजेंट, ठीक है. दिस इज टेंजेंट. ओके, अच्छा जी, अब हम 2 पॉइंट कोई भी निकाल लेते हैं इस टेंजेंट से. लेट्स से द फर्स्ट पॉइंट आई एम टेकिंग दिस वन, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ ये. सर लाइन स्ट्रेट नहीं है आई गेस. कौन सी वाली? सर फर्स्ट वाली जाते जाते फोर, जो 4 पे ड्रॉ किया आपने. थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, सही कह रहे हो. इसको डाल के ठीक कर लेते हैं. तो ये इसमें ड्राइंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है. सर रेड वाली को थोड़ा आगे बढ़ा देना. ये तकरीबन यहाँ पे आएगी फॉरवर्ड, ठीक है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे इसके टेंजेंट से. लेट्स टेक आउट द कोऑर्डिनेट्स नाउ. पहले वाले के हमें दिख रहा है 4, और इसमें हमें y की जो वैल्यू मिल रही है ये अप्रोक्सीमेटली 17. हाँ, इट इज 10 से लेके 20. हाँ नोट 17 इट इज, हाँ 17 ले सकते हैं, ठीक है. वी कैन टेक इट एज 17 हो जाएगा. यस सर. 4 और 17 हो जाएगा, और दूसरे का है हमारे पास 8 और 24. 8 and 24, बिल्कुल सही है. 8 and 24, ठीक है. सो ग्रेडियंट 1.75 आ रहा है. एक्सेलरेशन के बराबर होगा, दैट इज y2 minus y1 24 minus 17 upon x2 minus x1, that is 8 minus 4, so that is a is क्या आ रहा है ये 1.75 meters per second square. So this is your acceleration. Okay, any questions anyone? No sir. जी नाफे, any question? Hazan? हाजरा, कुरत, ईमान, किसी को कोई सवाल पूछना है? चांदनी? No, sir. Okay. So this is the part, the acceleration we are going to find. अच्छा, now let's move on to the next part. आगे चलते हैं इसमें.
The skydiver has equipment of total mass of 90 kilograms. Calculate for the skydiver the total weight. तो हमें इसका total weight calculate करना है. Obviously बात है W is equals to what? mg. So 90 multiplied by 9.81, that will give you its acceleration. 826.2. 826.2. 26.2. तो ये तो खाली इक्विपमेंट का हुआ ना. The skydiver and his weight has a total mass of this ना, total दोनों का है ना ये, ठीक है. The acceleration accelerating force at time 6 seconds. अच्छा जी, तो by the way अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे F minus F is equals to ma, ठीक है जी. तो एक्सेलरेटिंग फोर्स हमें निकालनी है. अब इसकी वो एक्सेलरेटिंग फोर्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है. बल्कि एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, पहले हम एक काम करते हैं. हमें इसकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पता चल गई थी. कितनी थी भाई उस वक्त एक्सेलरेशन? यहाँ पे 1.75 है ना जी, 1.75 है. और अब हम सिंपली क्या करेंगे, F इज इक्वल्स टू ma लगा के यहाँ पे हम इसकी एक्सेलरेटिंग फोर्स निकाल लेंगे. यानी दैट इज सिंपली 90 मल्टीप्लाई बाय 1.75. तो ये हमें इसकी एक्सेलरेटिंग फोर्स मिल जाएगी. बताइए क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 157.5. 157.5 या अप्रॉक्सीमेटली 158 है ना न्यूटन. जी, तो ये हमारे पास इसकी एक्सेलरेटिंग फोर्स आ गई. आपको लास्ट पार्ट में यकीनन हमसे रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट करवाएगा. यूज योर आंसर इन 1 टू डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइवर एट 6 सेकंड. तो 6 सेकंड के ऊपर आपको टोटल रेजिस्टिव फोर्स इसकी निकालनी है. दैट्स वेरी सिंपल. नाउ वी विल यूज द इक्वेशन F minus F is equals to ma. या हम ये भी कर सकते हैं कि वेट हमें पता है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स हमें पता चल गई है 158, तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता चल गई होगी. देखिए ये ऑब्जेक्ट का वेट है जो कि डाउनवर्ड फोर्स है, ये रेजिस्टिव फोर्स है, और रिजल्टेंट फोर्स इसकी अभी कहाँ बन रही है, डाउनवर्ड बन रही है, जिसको हम नेट फोर्स बोलेंगे. हम एक्चुअली में बोलेंगे जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो बराबर होगी वेट माइनस रेजिस्टिव फोर्स के, ठीक है. तो अगर आपको रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है तो रेजिस्टिव फोर्स निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस वेट को उस साइड पे ले जाएंगे. तो माइनस आर इज इक्वल्स टू एफ आर माइनस डब्ल्यू. यही हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है जी. सो माइनस साइन अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो आर किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस एफ आर के, है ना. वेट आपके पास कितना गिवन है, 826.2 माइनस रेजिस्टिव फोर्स है 157.5. तो हमें रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी. और व्हाट इज द सॉरी रेजिस्टिव फोर्स की, व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स? सर जो एक्सेलरेटिंग फोर्स थी वही रिजल्टेंट फोर्स है ना. वो रिजल्टेंट फोर्स है, ये रेजिस्टिव फोर्स है. अच्छा मैं एक मिनट, वेरिएबल्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं. जस्ट अ मिनट, मैं वेरिएबल्स को चेंज कर देता हूँ. जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, पे अटेंशन. चलो हम एक काम करते हैं. देखें ये हमारी हो गई वेट फॉरवर्ड फोर्स, ये हमारी हो गई एयर रेजिस्टेंस, इसको मैं एफ एयर लिख लेता हूँ, और ये आपका हो गया एफ आर, ठीक है. अच्छा डाउनवर्ड फोर्स इसको कितना खींच रहा है, 826.2. अपवर्ड फोर्स हमें निकालना है, और रिजल्टेंट फोर्स हमें पता चल गया है वो कितना है, 157.5. दैट इज 157.5. जी हाजरा बेटा, अब ये बताओ कि हमें रिजल्टेंट फोर्स पता है 157, रिजल्टेंट फोर्स 157 है. वेट में से एयर रेजिस्टेंस को जब हम माइनस करेंगे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उल्टी डायरेक्शन में है, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा. यानी 157.5 इज इक्वल्स टू 826.2 माइनस एयर रेजिस्टेंस, या जो आपकी रेजिस्टिव फोर्स. ठीक है हाजरा, अब बताओ बेटा इस क्या करेंगे, किस तरीके से होगा ये सॉल्व. इसको एयर रेजिस्टेंस को आप उधर ले जाओ और 157 को इधर ले आओ. तो एयर रेजिस्टेंस आपके पास किसके बराबर हो जाएगी जी,
826.2 माइनस 157.5 क्या आ रही है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स? 668.7 668.7 न्यूटन, या हम इसको 669 कंसिडर कर सकते हैं जी। इज दैट क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अभी भी? एनीवन? आजा बेटा क्लियर हो गया ये? एनीवन एल्स? वासे क्लियर है? अहमद, माज, कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर, सब क्लियर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये वाले क्वेश्चंस होंगे सॉल्व। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपके जो टेस्ट हो रहा है उसमें मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस दिए हैं, अभी सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं थ्योरी के, ठीक है? एमसीक्यूज नहीं है सर? नहीं एमसीक्यूज नहीं। कितने आई गेस 20 मार्क्स का है, 18-20 मार्क्स का पेपर है। जी सर हेलो जी बोले। सर, कभी कभार क्वेश्चन में आते हैं कि आप रेजिस्टिव फोर्स बनाए, मतलब वो लाइन बनाई है एरो बनाकर, तो हमें क्या ऐसी बना देना है या उस लाइन से हमें दूसरी रेजिस्टिव फोर्स बनानी होती है? हाँ क्या मतलब? सर, कभी कभार क्वेश्चन पेपर 2 में मैंने देखा है, पास पेपर में, उसमें बोलते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स बनाइए, ड्रॉ करिए रेजिस्टिव फोर्स। एक बोर्ड जा रही है और उसमें वेस्ट से एक हवा आ रही है, तो आप रेजिस्टिव फोर्स बनाइए। तो हमें जो लाइन दी हुई होती है, फॉर एग्जांपल बोर्ड की जो लाइन दी हुई उससे बनानी होगी या हमें खुद अलग से एक बनानी होगी? नहीं, जो हमें बोर्ड की लाइन दी होगी उसी से बनाई होगी। जैसे अगर वो कह रहा है विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट, तो अगर हम विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट का मतलब है तो ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो फ्रॉम वेस्ट का मतलब है कि विंड यूं आ रही होगी, जी जी, ठीक है? और लेट्स से अगर बोट किसकी तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, तो बोट आपकी नॉर्थ की तरफ यूं जाएगी, ठीक है? ये आपकी बोट ठीक हो है। जाएगी इस तरीके से। ये फिर हम इनको ऐड करके जो है इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। अक्सर वो क्वेश्चन बोलता है कि जी एक बोट है, वो जा रही है सीधा, या एक एरोप्लेन है वो सीधा जा रहा है, उसको विंड जो है वो लग रही है, और वो क्या पूछ लेता है कि जी उसको किस तरफ हम उसको मोड़ें उस एरोप्लेन को कि वो सीधा नॉर्थ की तरफ जाए। जी जी, इस तरह के क्वेश्चन में फिर थोड़ा सा हमें लॉजिकली सोचना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि विंड कहाँ से ब्लो हो रही है, वेस्ट से, ये विंड हो गई, और वेस्ट से ब्लो होके यकीनन फिर ईस्ट की तरफ जाएगी, और एरोप्लेन को जाना कहाँ है, टू गो नॉर्थ। किसकी तरफ जाना है, उसको नॉर्थ की तरफ जाना है। तो बताइए कि एरोप्लेन को हम किस तरफ लेके जाएं। तो बाय द वे हमें एरोप्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ चाहिए, नॉर्थ में, ठीक है जी? किस साइड पे चाहिए, नॉर्थ में चाहिए। और हमें जो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है, अब जिस तरफ भी हम उसको मोड़ेंगे उसमें विंड वाले हिस्से को ऐड कर देना चाहिए, तो हमें रिजल्टेंट मिलेगी। तो बाय द वे ये आपकी विंड आ गई हो, और ये आपका फिर वो क्या आ जाएगा, एरोप्लेन की ओरिजिनल वेलोसिटी, जिसमें अभी वो जाना चाहिए। अगर वो यूं जाएगा, ये देखो इस तरह, और फिर जब हम उसमें विंड को ऐड कर देंगे तो ये ठीक दोनों है, नॉर्थ की ऐड तरफ हो हो, जाए। फिर ये किसकी तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ। ये रिजल्टेंट में जा रहा हूँ, ठीक है जी? ठीक तो है, अगर ठीक हम इसको देखें तो फिर वो अक्सर आपसे कहते हैं, यानी हमें इसको एक्चुअल में एरोप्लेन को किस साइड पे लेके जाना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ लेके जाना चाहिए। ठीक और फिर वो एंगल भी निकलवा सकता है, इस तरह की वैल्यूज कैलकुलेट करवा सकता है, ठीक है? ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अच्छा, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अनदर टाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है? लेट अस डिस्कस दैट। दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? और लेट्स से अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कर्व जो है वो कुछ ऐसा मिले,
तो वी कैन सी दैट द लाइन इज नॉट स्ट्रेट, इट इज अ कर्व। ये कर्व है और कर्व का पता है कि हमें ग्रेडियंट कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। ओके, नाउ ओवर हियर इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, व्हाट वी कैन सी दैट कि हमारे पास जब हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट्स को ड्रॉ करके हमें ये पता चल रहा है कि टेंजेंट इज गेटिंग स्टीपर एंड स्टीपर, व्हिच मींस द कर्व इज गेटिंग पैरेलल टू y एक्सिस। द कर्व इज गेटिंग पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब है कि ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। ओके, एंड सिंस दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, so gradient of velocity time graph is what? Acceleration. Acceleration. It means the acceleration is increasing. ठीक है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज होने का क्या मतलब है, गाड़ी की स्पीड जिस रेट से बढ़ रही थी वो बढ़ने का रेट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। व्हाट इज मीन बाय दैट कि लेट्स से स्टार्टिंग के 1 सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी कितना बढ़ी, 5, लेकिन अगले 1 सेकंड में हमने क्या नोटिस किया कि वेलोसिटी 5 की जगह कितनी हो गई, 22 बढ़ने की बजाय कितना हो गई, 15 हो गई। यानी स्टार्टिंग के 1 सेकंड में कितना इंक्रीज हुई थी, 5, लेकिन नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना इंक्रीज हुई, 10। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, 30, यानी अगले 1 सेकंड में मजीद कितना बढ़ी, 15। यानी हर एक सेकंड में वेलोसिटी का जो बढ़ने का रेट है वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा जा रहा है। लेट्स से दिस इज अ कार, अगर मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूं, ठीक है, टाइम अभी 0 है, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। 1 सेकंड के बाद जब हमने इस गाड़ी को देखा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर्स पर सेकंड। बट द नेक्स्ट सेकंड हमने क्या नोटिस किया कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास, 10 नहीं बल्कि 15 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी कितने मीटर पर सेकंड बढ़ी, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, पहले 5 बढ़ी थी फिर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। ठीक है, और उसके अगले 1 सेकंड के बाद T3 में हमने क्या नोटिस किया कि इस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हो गई, 15 और बढ़ के कितनी हो गई, 30 मीटर्स पर सेकंड। दिस इज अगेन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये भी एक एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की है, जिसमें हर सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बढ़ने का रेट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए इस ग्राफ को। सर मुझे टेंजेंट के बारे में बता दें, मुझे इसकी लॉजिक नहीं पता। टेंजेंट की लॉजिक नहीं पता बच्चा। जब भी हमारे पास जब कोई कर्व होता है ना, तो कर्व में हम एक्चुअली किसी भी पॉइंट का ग्रेडियंट जो है वो सिंपली उस पॉइंट पे टेंजेंट बना के निकालते हैं। अच्छा, टेंजेंट की खासियत ये होती है कि टेंजेंट एक तो आप स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल पतले स्केल और एक बारीक पेंसिल से बनाएंगे। लेट्स से ये आपके पास एक कर्व है और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मुझे टेंजेंट बनाना है तो जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा वो ऐसे बनाऊंगा कि बस वो इस पॉइंट को हल्का सा क्या करता हुआ निकल जाए, टच करता हुआ, छूता हुआ गुजर जाए। ठीक है, अच्छा, फिर ये जो ट्राइंगल बन जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो हो जाएंगे लेट्स से x2 y2, ये तुम ग्राफ से निकाल लोगे, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो x1 और y1 हो जाएंगे। सर ये ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ क्यों करते हैं? क्या चीज़? ये टेंजेंट ड्रॉ क्यों करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास, आपके पास ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है, तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को एज्यूम करते हैं कि हाँ जी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम यूनिफॉर्म कंसिडर कर लें तो यूनिफॉर्म कंसिडर करते हुए हम उस पॉइंट की वैल्यू इस टेंजेंट के थ्रू निकाल रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कर्व के ऊपर टेंजेंट बनता है, स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कॉपी हो गया ये? जी सर, एक सेकंड।
Now let us discuss another type of velocity time graph. एक और किस्म का velocity time graph discuss करते हैं. Now let's say the graph is like this. See. Now what does this mean? देखिए, the curve is getting parallel to which axis? X. X-axis. So the curve is getting parallel to x-axis, which means the gradient is decreasing. Decreasing. Gradient decrease हो रहा है. अच्छा, अगर gradient decrease हो रहा है और velocity time graph का gradient क्या होता है? Acceleration. तो acceleration आपके पास decrease हो रही है. और by the way, you can see that the curve is coming downward. तो डाउनवर्ड कर्व का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन या ग्रेडियंट एक्चुअली में है कैसा? Negative. नेगेटिव में. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को नॉर्मली वी कॉल इट Deceleration. deceleration या retardation, which means that the retardation is decreasing. ऑब्जेक्ट की रिटार्डेशन क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है. स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से रिटार्ड हुआ था. ऑब्जेक्ट बड़ी तेजी से सर ये पॉइंट रिपीट करें. ठीक है. अच्छा जी. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है हमारे पास. नेगेटिव एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेडियंट नीचे की तरफ जा रहा है. नीचे की तरफ जब भी कोई लाइन या कर्व जाता है तो हम कहते हैं कि उसका ग्रेडियंट नेगेटिव में. और नेगेटिव में होने का मतलब ये है कि उसमें क्या हो रही है? डीसेलरेशन हो रही है या रिटार्डेशन हो रही है. यानी एक्सेलरेशन नहीं हो रही बल्कि डीसेलरेशन हो रही है. ठीक है. और क्योंकि ये ग्रेडियंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि डीसेलरेशन भी क्या होती जा रही है? डिक्रीज हो रही है. यानी वेलोसिटी डिक्रीज होने का रेट आहिस्ता 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 कम होता जा रहा है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एग्जांपल फॉर्म में आपको समझाऊं कि लेट्स से एक गाड़ी थी 40 मीटर्स पर सेकंड से चल रही थी. ठीक है. टाइम 0. 1 सेकंड के बाद हमने इस गाड़ी को नोटिस किया तो इस गाड़ी की वेलोसिटी हो गई हमारे पास. नहीं बेटा, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है सारे, क्योंकि ग्रेडियंट ग्राफ का डिक्रीज हो रहा है. एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन डिक्रीज हो रही है. 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड. तो वेलोसिटी बढ़ी नहीं बल्कि क्या हो गई? कम हो गई. व्हिच मींस दैट इट इज अ डीसेलरेशन. ओके. तो स्टार्टिंग के 1 सेकंड में कितना चेंज आया? -10 का. ठीक है. अच्छा. नाउ द नेक्स्ट 1 सेकंड इज व्हाट वी विल सी दैट कि अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी और कम हो गई. और कितनी कम हो गई? लेट्स से 25 मीटर पर सेकंड. तो अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी और कम हुई, बट दिस टाइम द वेलोसिटी इज डिक्रीज बाय -5 मीटर पर सेकंड. ओके. तो इट मींस दैट कि ऑब्जेक्ट डीसेलरेट हो रहा है, लेकिन उसका डीसेलरेशन का रेट भी क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है जी. सो दिस इज द ग्राफ. प्लीज कॉपी दैट. जी कॉपी हो गया ये. अच्छा, कल वाला टेस्ट तो आप लोगों का पहले चैप्टर का है ना, फिजिकल क्वांटिटीज और उसका है ना? जी सर. जी. फिजिकल Yes, sir. क्वांटिटी और वेक्टर्स का है ना? जी कॉपी हो गया ये. ओके. अच्छा जी.
तो एक और ग्राफ की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है, और लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्राफ. If we have a velocity time graph like this, VT graph, and the graph is like this. Again, the curve is getting downwards, but the curve is getting parallel to which axis? Y axis. Why? So it means the curve is coming downward. So gradient Increase हो रहा है. is increasing. बिल्कुल सही, gradient increase हो रहा है, gradient increasing, और लेकिन gradient है कैसा? Negative, which means acceleration, or we can call it deceleration. Deceleration is increasing, यानी आपके पास जो velocity decrease होने वाला rate है वो भी क्या होता जा रहा है? Increase होता जा रहा है. What does this mean? A car is traveling with the velocity of 40 meters per second at time t0. Now after 1 second, what happens? The velocity of the car becomes 30 meters per second. Okay, this is time 1 second. So what is the change? The change in velocity is minus 10 meters per second in the initial second. Now what's happened in the other next second? The velocity of the object becomes 10 meters per second. ठीक है? So what happens this time? This time the velocity has decreased by minus 20 meters per second. ठीक है? तो स्टार्टिंग के 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हुई थी, जबकि अगले 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड कम हुई. तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज होने का रेट भी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए इसको. यस, एंड वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज होने के साथ साथ उसका रेट इंक्रीज होता जा रहा है. रेट इंक्रीज हो रहा है, जिस रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, वो रेट इंक्रीज होता जा रहा है. यानी शुरू के 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना डिक्रीज हुई? 10, लेकिन अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना डिक्रीज हुई? 20. अच्छा, आप लोगों का जो टेस्ट है, जो मैं बता दूं थोड़ा बहुत उसके बारे में. दैट्स नॉट वेरी लेंथी टेस्ट. आई हैव जस्ट सीन योर पेपर. मुझे याद नहीं था मैंने टेस्ट क्या दिया था. आई हैव जस्ट सीन योर पेपर. द टेस्ट इज ओनली ऑफ 11 मार्क्स. सिर्फ 11 मार्क्स का आपका टेस्ट है, और दैट इज ओनली ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. इट इज नॉट इंक्लूडिंग वेक्टर. ठीक है? हाँ, अच्छा, डेफिनेशंस वगैरह हो सकती हैं, वेक्टर्स, स्केलर्स वगैरह की डेफिनेशंस वगैरह हो सकती है, माइट बी पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट हैविंग एनी क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ नहीं है. हाँ, उसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चंस हैं और फिजिकल क्वांटिटीज के क्वेश्चन. ठीक है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल आप सबको पता है ना, जिससे हम लोग बेसिक यूनिट को ड्राइव करते हैं किस तरीके से, वो सारी चीज़ें. तो प्लीज लुक इट. हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज में होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी डिस्कशन है ना. फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, किस कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें. ठीक है, स्ट्रक्चर पे सवाल है ना. स्ट्रक्चर के सवाल है. टेस्ट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान सा पेपर है, एंड यू कैन इजीली डू दैट. आराम से आप इसको कर सकते. ठीक है? जस्ट लुक इनटू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल थॉरली, और होमोजेनिटी प्रिंसिपल को काफ़ी थॉरली देखिएगा कि अननोन क्वांटिटीज़ के जो हम यूनिट बनाते हैं ना, होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करके, वो सारी चीज़ें ज़रा ध्यान से देखिए. ठीक है? आज प्रैक्टिकल है. आज प्रैक्टिकल नहीं है मेरा ख्याल है. प्रैक्टिकल का कुछ इन्होंने चेंजिंग किए हैं. द प्रैक्टिकल इज ऑन सैटरडे आई गया. सब कुछ सैटरडेज का इन्होंने मुझसे बोला था कि सर सैटरडे का भी टाइम कर लें, तो सैटरडे का मैंने इनको टाइम दिया. आई थिंक आप लोगों को अपडेटेड टाइम टेबल मिल जाएगा. सर एक सेकंड, ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बता देंगे. हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q = mc डेल्टा T. इसमें Q होता है हीट, एनर्जी. ठीक है? यानी यहाँ पे सिंपली एनर्जी का यूनिट होगा, m मास है, C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T ये होता है चेंज इन टेम्परेचर.
ठीक है, तो अगर आपको सी का यूनिट निकालना है तो आप इसको सब्जेक्ट बना के इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मास और टेम्परेचर तो दोनों बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, केल्विन और किलोग्राम उसका आ जाएगा। हाँ, एनर्जी के लिए आपको उसका यूनिट बनाना पड़ेगा और बस फिर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक। सर सारी एनर्जी का एक ही यूनिट होता है ना, मतलब कोई हाँ, कोई भी आप एनर्जी ले लें, किसी भी एनर्जी ले लें, उसका यूनिट हमेशा हमारे पास kg m2s-2 ये यूनिट होता है। सर ठीक है? कुछ पास पेपर में एस्टिमेट्स की भी क्वेश्चन है, वो एस्टिमेट कैसे करना होता है? एस्टिमेट्स की बेटा वैल्यू आप लोगों को रिमेंबर रखनी होती है, याद करनी होती है कुछ क्वेश्चंस की वैल्यूज को। जैसे कि बहुत कॉमनली एक एस्टिमेट है कि एक एथलीट रनर जो है, जो 100 मीटर रेस में भाग रहा होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 10 टू द पावर थाउजेंड्स में होती है, 3 के ऑर्डर की होती है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थाउजेंड्स में होती है, 1000, 2000, क्वेश्चन क्या होता है 3000। इसका? क्या चीज? इसका क्वेश्चन क्या होता है सवाल का? What is the estimated energy of an athlete in a kinetic energy of an athlete in a 100 meter race? 100 मीटर रेस में एक एथलीट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी एस्टिमेटेड? तो काइनेटिक एनर्जी एक आदमी की ना थाउजेंड्स के ऑर्डर में होती है, थाउजेंड्स से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि एक आदमी जो है ज़्यादा 60, 70, 80 किलो का होता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का नहीं होता। और वो जब किसी 100 मीटर रेस में भागता है तो 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकता वो। ठीक है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू फिर हमारे पास उसकी तकरीबन 4000 के आसपास आती है। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी वाले सवाल भी आते हैं कि उसकी तो फ्रीक्वेंसी आपको में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना वेव्स में, तो वहाँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टेबल याद करना पड़ेगा पूरा। तो जब आप याद करोगे तो फिर आपको जो है ना वो कभी कभार तो ऐसे सवाल भी आते हैं कि एक एडल्ट आदमी का सर का वॉल्यूम कितना होता है, व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हेड। तो एक एडल्ट ह्यूमन हेड का वॉल्यूम जो होता है ना वो एक जंबो बोतल के बराबर होता है। जंबो बोतल कितनी होती है? 2.25 लीटर। सर जी, क्या है, एमसीक्यू कर रहा था, तो यंग मॉड्यूलस का क्या होता है? यंग मॉडुलस अभी हम पढ़ेंगे। दिस इज अ डीफॉर्मेशन के चैप्टर में है। असल में फिजिकल क्वांटिटीज में ना बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, तो अभी तो हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे ना, तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम पढ़ते जाएंगे, तो फिर उनके यूनिट्स वगैरह सारी चीजें आती हैं। जी इंटेंसिटी, मोमेंटम और यंग मॉडुलस जी, इंटेंसिटी एक्चुअल में फार्मूला होता है, ये भी वेव्स के चैप्टर में आएगा। इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है पावर अपॉन एरिया। ठीक है, ये इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। और यंग्स मॉडुलस का इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, जिसमें स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेस का यूनिट वही होता है जो किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। स्ट्रेन का नो यूनिट होता है, कोई यूनिट नहीं होता। इसका मतलब है कि यंग मॉडुलस का भी वही यूनिट होगा जो सिंपली किसका होगा? प्रेशर का होगा। ठीक है, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये इस तरीके से। हाँ, ये याद करने पड़ेंगे ऐसा ना आपको, ऑब्वियसली सारे फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर अभी तो ये नहीं आएंगे ना ये वाले? नहीं, अभी ये नहीं आ रहे, अभी नहीं आ रहे। हाँ, हेड ऑफ द वॉल्यूम को याद करना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला नहीं है इसका। फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसका फॉर्मूला अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप एक ये काम कर सकते हैं कि आपका सर जो है हम उसको कंसिडर करेंगे हेड को स्फीयर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आपको आर की वैल्यू चाहिए होगी अपने हेड की। आर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो आर की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अपने सर का सरकमफेरेंस हम निकाल लें। सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के। ठीक है, तो अगर आप अपने सर का सरकमफेरेंस निकाल लें
और उस सर्कमफ्रेरेंस को फिर 2 पाई से डिवाइड कर दें तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर आप इस फॉर्मूले में लगा के अपना वॉल्यूम हाइट का कैलकुलेट एक्यूरेट कर सकते हैं कि कितना हाइट का वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सही है भाई ऐसन? नहीं P4 में क्यों होगा भाई, अभी भी कर सकते हैं हम। चले जी, यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम। और कल इंशाल्लाह आप लोगों की फिजिकल क्लास भी, और कल आपका वो है क्या नाम है इसका, प्रैक्टिकल में नहीं है भाई, प्रैक्टिकल में नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, कल आप लोगों की फिजिकल क्लास भी है और कल आप लोगों का टेस्ट भी है। ठीक है ना? ठीक है। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।